Hello students, how are you? So student, today we are going to start your second chapter of NCERT, that is acid, bases and salt. So examination point of view, this chapter is very important, and almost 5 to 10 marks question will be asked from this chapter. So let us study topic one by one in this chapter. So let us start with acids and base. So first of all, dear students, we classified acids and base. Understand? So now in the previous class, in the 8th class, in the 7th class and almost in the 6th class से आप इसको पढ़ते आ रहे हैं. एसिड्स जो होते हैं, अगर आप कॉमनली एसिड्स देखें, सिट्रस फ्रूट सभी कॉमनली एसिड्स होते हैं. तो सिट्रस फ्रूट जो होते हैं बेसिकली वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं. इफ वी टेस्ट द एसिड्स देन दीज एसिड्स अपीयर्स टू अस sour in taste, and bases का टेस्ट कैसा होता है? bitter in taste. But actually we cannot taste every acids or base because some acids are harmful to our body. So how we identify these acids and base? These acids and bases identified by with the help of the common indicator, that is one of commonly indicator, litmus paper. So first of all, we classified acids on the basis of taste. तो एसिड का टेस्ट कैसा होता है स्टूडेंट? sour in taste. And bases are bitter in taste. If we taste some common acids and base, for example, common acids are all citrus fruit. For example, all citrus fruit. These are acids. And base bitter in taste, for example, sodium hydroxide, NaOH. एक base है and it is bitter in taste. But we cannot we cannot taste every acids and base because some acid and base are quite harmful to us. So that's why we need indicators to distinguish between acids and base. So commonly indicator जो आज तक आपने अपनी previous classes में पढ़ा है, that is litmus paper या litmus solution. Understand? So what are the effect of litmus paper? Actually litmus solution is obtained from the lichens. Understand? ये जो litmus का बेटा स्टूडेंट एक्सट्रैक्ट है, that is extract from lichens, and lichens are grow on the swampy areas. तो वहां से लिटमस सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है. सो लिटमस पेपर या आप लिटमस पेपर भी इसका अवेलेबल होता है और लिटमस सॉल्यूशन. सो एसिड के केस में ब्लू लिटमस चेंजेस इनटू रेड लिटमस पेपर. एसिड्स के केस में ब्लू लिटमस changes to red in color. If it means that if we put acid in a test tube and add a little amount of some acid like H2SO4, HNO3, HCl, ठीक है, acetic acid, then blue litmus का कलर बेटा कैसे किसमें कलर चेंज हो जाएगा? रेड में चेंज हो जाएगा. सेम इन केस ऑफ बेस में ऑपोजिट इसका बिल्कुल ऑपोजिट इसमें रिएक्शन होगी. तो बेस के केस में जो आपका रेड लिटमस सॉल्यूशन है, इस लिटमस का कलर ही रेड होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. तो रेड लिटमस
changes to blue in color. That is in case of base. I hope you understand. So commonly जो base होते हैं बेटा, वो commonly base वो होते हैं जो OH आयन, OH नेगेटिव आयन को रिमूव करते हैं. जैसे ये कॉमन है, ये OH नेगेटिव आयन है इसमें, अंडरस्टैंड. इसी तरह से पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, these are common base. So I hope you understand. And let सबसे पहले आप एसिड्स और बेस के एग्जांपल नोट कर लो. इसमें एग्जांपल आएंगे, बट इन एसिड इन बेस को आप टेस्ट नहीं कर सकते, इनको लिटमस पेपर के द्वारा आपने डिफरेंशिएट करना है. सो कॉमनली सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉमन बेस है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, इट इज कॉल्ड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड. Sodium hydroxide, you can also write the name of this, sodium hydroxide and potassium hydroxide. And calcium hydroxide CaOH twice. I hope ये आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि ये 2 कहाँ से आया, बिकॉज ये ऑलरेडी आपने सीखा हुआ है 9th स्टैंडर्ड में हाउ दिस टू कम फ्रॉम. आई अंडरस्टैंड. नाउ अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH. So these are common base. So we can differentiate acids and base by with the help of the litmus paper. ये सबसे better way है litmus solution या litmus paper. Litmus solution and litmus paper when you can when we perform the experiment, then I definitely show you how litmus paper work on acids and base. अंडरस्टैंड. नो अब हम देखते हैं बेटा सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स. अंडरस्टैंड. सो प्लीज नोट डाउन दीज थिंग्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एसिड्स के भी एग्जांपल हम राइट करेंगे. इसके भी एग्जांपल मैं आपके सामने राइट कर रहा हूँ. इसके कॉमन एग्जांपल लिखिए HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं इसको. Second is sulfuric acid, that is the king of chemical, H2SO4, king of chemical इसको बोला जाता है because it is very highly acidic in nature. Nitric acid, HNO3, and last acetic acid. So these are the common examples of acids and base. Now next time some naturally occurring acids. Kindly note down these things. Now let us take some other example of acids, some naturally occurring acids. तो बेटा सबसे पहले है, अभी हम एसिड की बात करनी है अभी, तो विनेगर सिरका जिसको बोलते हैं विनेगर. तो विनेगर में क्या होता है बेटा 5 to 10% एसिटिक एसिड. तो ये किससे बना होता है विनेगर, किससे बना होता है एसिटिक एसिड. 5 to 7% only, that is called vinegar. ऑरेंज में कौन सा ऑरेंज में होता है आपका सिट्रिक एसिड, उसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड. लेमन citric acid, again citric acid. Next है tamarind tartaric acid. Tartaric acid. You just remember the name of these acids.
ठीक है। टोमेटो में होता है बेटा ऑक्जेलिक एसिड। देयर इज नो नीड टू रिमेंबर द सिंबल, जस्ट रिमेंबर कि ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, लेमन में भी सिट्रिक एसिड होता है, टैमरिंड में टार्टरिक एसिड होता है। उसके बाद टोमेटो में स्टूडेंट क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड, सॉर मिल्क जिसमें कर्ड आप जिसको बोलते हैं, ठीक है, कर्ड में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। एंड नेटल स्टिंग में होता है स्टूडेंट मेथनोइक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारा इंपॉर्टेंट है। एक बात और नोट करिए आप, एंट स्टिंग और नेटल, इनमें क्या होता है बेटा, नेटल एक लीफ होती है बेसिकली, नेटल लीफ में, तो ये होता है मिथनोइक एसिड। इसका फॉर्मूला HCOOH, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज नोट डाउन दीज थिंग्स। डियर स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है यहाँ से हर बार एक 1 मार्क्स के क्वेश्चन हर बार बनते हैं। सो ऑरेंज में आपका सिट्रिक एसिड होता है, लेमन में सिट्रिक एसिड, टैमरिंड में टार्टरिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, एंट स्टिंग, अगर आपको कोई मकड़ी काट ले या चिमटी काट ले, या नेटल, एक प्लांट होता है नेटल प्लांट, उसकी जो लीफ होती है उसमें भी एक एसिड होता है, दैट इज कॉल्ड मिथनोइक एसिड। दिस क्वेश्चन यहाँ से एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है 5 to 7%। इट मीन्स दैट बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग उसमें क्या होगा, वाटर होगा, 5 to 7% उसमें क्या होगा, सिर्फ प्योर एसिटिक एसिड होगा। अंडरस्टैंड? एंड रेस्ट ऑफ द थिंग उसमें क्या होगा बेटा, वाटर। So note down these things. Now we are going to start another topic, that is some natural acid base indicator. So next topic है, मैं इसको रेज कर रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा acid base indicator. So let us start acid base indicator. Now यहाँ पर बेटा स्टूडेंट एक कॉमन वर्ड है इंडिकेटर। what is the indicator? When you drive any vehicle, you just turn left or right, you just signal the indicator. इंडिकेटर होता है आपको पीछे वाले को बताना है कि मैं इस दिशा में जा रहा हूँ, इस दिशा में जा रहा हूँ, दैट इज द इंडिकेटर। सो इंडिकेटर का काम क्या है? इंडिकेटर इज दैट विच फ्रॉम विच वी कैन आइडेंटिफाई एसिड्स एंड बेस। अंडरस्टैंड? सो एसिड बेस इंडिकेटर, तो बेस स्टूडेंट्स एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं, इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड्स और बेस इन ए सॉल्यूशन। ठीक है। सो एसिड बेस इंडिकेटर का काम क्या होता है बेटा? तो इसमें आप जस्ट राइट करोगे इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स और बेस इन ए सॉल्यूशन। इंडिकेट होता है किसी की जानकारी देना, इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ
acids and bases in a solution, that is called indicator. So सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर. सो देर आर सम नेचुरल इंडिकेटर. सबसे पहले तो हम करेंगे बेटा लिटमस सॉल्यूशन. ठीक है, तो सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर. नेचुरल इंडिकेटर, तो नेचुरल इंडिकेटर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है लिटमस सॉल्यूशन. इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर. इट इज पर्पल डाई एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लाइकन्स. पर्पल कलर की डाई होती है दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकन्स. और लाइकन्स क्या होते हैं, इसके लिए आपको बायो का याद करना पड़ेगा. लाइकन्स आर बेसिकली द अल्गल एंड फंगल एसोसिएशन, दैट इज कॉल्ड लाइकन. लिचन भी बोलते हैं, LICHEN. ठीक है. अदर एग्जाम्पल आर रेड कैबेज, कलर्ड पेटल ऑफ पिटूनिया एंड टर्मरिक. ठीक है. सो नेचुरल इंडिकेटर के एग्जाम्पल राइट करो. सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर लिटमस सॉल्यूशन या पेपर, लिटमस सॉल्यूशन. सेकेंड एग्जाम्पल इसका राइट करो रेड कैबेज, colored petal of पिटूनिया. एक प्लांट है, इसकी जो कलर्ड पेटल्स होती हैं दैट इज आल्सो, उनका जो एक्सट्रैक्ट होता है बेसिकली दैट एक्ट एज ए इंडिकेटर. एंड लास्ट है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमनली यूज टर्मरिक पाउडर. टर्मरिक हल्दी पाउडर. सो दैट आर नेचुरल इंडिकेटर. अब यहां से क्वेश्चन ये बनता है बेटा लिटमस, हाउ लिटमस सॉल्यूशन ऑब्टेन. तो ये कहां से मिलता है बेटा, लाइकन से मिलता है. एंड व्हाट आर लाइकन? लाइकन आर द अल्गल एंड फंगल एसोसिएशन ऑफ बेसिकली अलगी और फंजाई की एसोसिएशन होती है. एंड लाइकन का जो एक्सट्रैक्ट होता है दैट इज कॉल्ड लिटमस सॉल्यूशन. ये इसका कलर होता है पर्पल कलर डाई. ठीक है. जब ये लाइकन से, लाइकन जो होते हैं बेसिकली ये एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, एक्सट्रैक्ट, और इसका कलर होता है पर्पल कलर. और बेसिकली जो लिटमस सॉल्यूशन होता है वो डिफरेंट कलर्स में मिलता है. रेड लिटमस, ब्लू लिटमस. बेसिकली हम एसिड और बेस के लिए किसका यूज करते हैं, रेड और ब्लू लिटमस का यूज करते हैं. Understand? So let us study the effect of litmus on acids and base. Understand? So student, जो litmus solution होता है, litmus solution acids के केस में और बेस के केस में ये अलग अलग इफेक्ट शो करता है. नो एसिड्स के केस में रेड लिटमस किस में, ब्लू लिटमस किस में चेंज हो जाता है, इसका कलर ही ब्लू होगा. तो ब्लू लिटमस चेंजेस इनटू रेड इन कलर अगर आप इसमें एसिड डालेंगे. एंड बेस में इस जो ये लिटमस सॉल्यूशन होगा इसका कलर कैसा होगा बेटा, रेड कलर होगा. तो रेड लिटमस चेंजेस टू ब्लू इन कलर. आई होप ये आपको समझ आया होगा. प्लीज नोट डाउन दीज थिंग्स.
सो आई होप यू नोटेड दिस थिंग। सो बेटे यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि इफ अ स्टेन ऑफ करी, अगर आपकी जो शर्ट है उसके ऊपर कड़ी जो हम नॉर्मली खाते हैं उसका स्टेन अगर पड़ा है तो उसका कलर चेंज हो जाता है इफ़ वी अप्लाई बेस। तो बेस जो आपका सोप होता है वो एक बेस होता है। इफ़ वी अप्लाई बेस दैट इज सोप ऑन क्लोथ्स कंटेनिंग स्टेन ऑफ करी देन देर इज ए चेंज इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। तो यहाँ पर इंडिकेटर का काम कर रहा है टर्मरिक। सो बेस की रिएक्शन हो रही है टर्मरिक के साथ, तो देर इज ए चेंज इन कलर। सो ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करेंगे। सो इसको आप एनसीईआरटी अपनी बुक पर देख सकते हो। तो एनसीईआरटी बुक में क्लियरली ये चीज़ लिखी है, हैव यू नोटिस दैट द स्टेन ऑफ कड़ी ऑन ए वाइट क्लोथ become reddish brown when soap, which is basic in nature, is scrubbed on it. It turns yellow again. Then the cloth is washed with plenty of water, and you can also use synthetic indicator. तो बेटा अगर आपके क्लोथ पर कड़ी का स्टेन है, कड़ी जो नॉर्मली हम खाते हैं जिसमें हल्दी पड़ी होती है, ठीक है, तो जैसे ही हम उसके ऊपर सोप अप्लाई करते हैं, क्योंकि टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है, तो सोप जैसे ही आप उस पर ऊपर अप्लाई करते हैं वो रेडिश ब्राउन कलर उसका बन जाता है, ठीक है, विच इज बेसिक इन नेचर, इज स्क्रब्ड ऑन इट, इट टर्न्स येलो अगेन, फिर से येलो हो जाता है पर हल्का येलो होता है। अंडरस्टैंड बेटा? तो व्हाट इज द रोल ऑफ सोप? सोप एक्ट एज ए बेस। सो यहाँ से क्वेश्चन नोट कर लिए कि what is the effect of soap on shirt containing stain of curry CURRY कड़ी जिसको हम नॉर्मली हम खाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा उसका कड़ी रेडिश ब्राउन कलर उसका बन जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर। सो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आया होगा। नेक्स्ट बेटा सिंथेटिक इंडिकेटर। Now synthetic, as the word indicates, synthetic man-made indicators. These indicators are prepared in the laboratory. These are called synthetic indicators. The common example of synthetic indicator are methyl orange and phenolphthalein. ठीक है, तो सिंथेटिक इंडिकेटर आर दो विच आर प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। तो ये कहाँ पर प्रिपेयर्ड होते हैं बेटा? प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, ठीक है। सो मैन मेड इंडिकेटर, तो फॉर एग्जाम्पल मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथलीन। अब यहां से बेटा एक क्वेश्चन यहां से आता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस ऑन दिस सिंथेटिक इंडिकेटर, दैट इज फिनोल्फथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज के ऊपर इंडिकेटर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उसको नोट करिए बेटा। तो एसिड्स के केस में सबसे पहले हम देखते हैं मिथाइल ऑरेंज। इसका जस्ट आपने फॉर्मूला नहीं याद करना, जस्ट नेम याद रखना है, मिथाइल ऑरेंज। तो सबसे पहले मिथाइल ऑरेंज एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, ठीक है। तो एसिड को ये किसमें चेंज करता है? एसिड्स को किसमें चेंज करेगा बेटा? ये रेड कलर में चेंज करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिथाइल ऑरेंज किसमें? इस, क्योंकि इसका कलर नहीं आपको याद रखना है। मिथाइल ऑरेंज ये जस्ट एक सॉल्यूशन है, आपके सामने सॉल्यूशन दिया जाएगा एंड एसिड दिया जाएगा, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज बेसिकली एसिड को किसमें चेंज करता है? रेड कलर में, ठीक है। और बेस को किसमें चेंज करता है बेटा? ये बेस का कलर नोट कीजिए, बेस को ये येलो कलर में चेंज करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन इसका कलर पूछते हैं। अंडरस्टैंड? अगर आप मिथाइल ऑरेंज में बेस डालेंगे तो उसकी कलर को क्या करेगा? ये येलो कलर करेगा। अंडरस्टैंड? एंड
नेक्स्ट है फिनोल्फेथिलीन। ये ऑरेंज कलर का होता है, यहाँ पर इसका मिथाइल ऑरेंज इसलिए पड़ा है, ऑरेंज कलर का होता है, तो उसको येलो में चेंज करेगा बेस को, और एसिड्स को रेड में चेंज करेगा। नेक्स्ट है फिनोल्फेथिलीन, जो सेकंड है फिनोल्फेथिलीन। इसका कलर होता है कलरलेस, इसका कलर ये वाटर जैसा दिखता है आपको, कलरलेस। तो एसिड के ऊपर इसका कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। एंड बेस के ऊपर ये किसमें चेंज करेगा बेटा, टू पिंक कलर में चेंज करेगा इसको, पिंक कलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहां से दो क्वेश्चन बनेंगे, व्हाट आर synthetic indicator। तो synthetic indicator are those indicators which are prepared in the laboratory by human beings with the help of chemicals, that is called synthetic indicator। And for example methyl orange and phenolphthalein। फिनोल्फेथिलीन एसिड को किसमें चेंज करता है बेटा, रेड कलर में, क्योंकि इसका कलर होगा ऑरेंज कलर, तो ये रेड कलर में चेंज करेगा। एंड बेस को ये किसमें चेंज करेगा, येलो कलर में चेंज करेगा। फिनोल्फेथिलीन नो चेंज, एंड ये किसमें चेंज करेगा, पिंक कलर में चेंज करेगा। सो दैट आर दी टू इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर दैट आर इन योर सिलेबस, 10th क्लास सिलेबस। सो इसको नोट करना है अपने। सबसे पहले मैंने आपको कराया नेचुरल इंडिकेटर, फिर मैंने उसके बाद आपको कराया सिंथेटिक इंडिकेटर। नाउ थर्ड टाइप के इंडिकेटर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो बेटा स्टूडेंट टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल्फैक्टरी। टेल मी बेटा स्टूडेंट, जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है वो अपनी स्मेल को चेंज कर लेते हैं, ऑर्डर को चेंज कर लेते हैं, दैट आर कॉल्ड olfactory indicator। show order changes in acidic or basic media, for example onion and clove, that are called olfactory indicators। so सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको थर्ड करवाता हूँ olfactory indicator। आज हमने सिर्फ इंडिकेटर्स के बारे में सीखा, अंडरस्टैंड। अगर आपको इंडिकेटर्स के बारे में अच्छी तरह से पता है, देन यू कैन सॉल्व मैनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंडिकेटर्स। मिनटों में कर सकते हैं आप, सेकेंडों में, सेकंड्स में कर सकते हैं। सो पहले इसको नोट करिए, फिर मैं आपको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बताता हूँ। So let us start student, third type of indicator, that is called olfactory indicators। यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि व्हाट आर olfactory indicator। तो olfactory indicator are those indicator which can change their smell on acids and base। तो वर्ल्ड olfactory का मीनिंग क्या है बेटा, olfactory का मीनिंग होता है स्मेल को चेंज करना, ठीक है, ऑर्डर को चेंज करना, शो ऑर्डर चेंज। तो यहाँ पर आप लिखेंगे olfactory indicator are those indicator which show ऑर्डर चेंज, ऑर्डर बोलते हैं उसको स्मेल को, ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडिया, इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। अब इसका ये स्मेल नहीं पूछी जाती कि कौन से स्मेल में ये चेंज होते हैं, जस्ट आपने याद रखना है कि स्मेल चेंज होती है, अंडरस्टैंड। अगर आप इसके ऊपर एसिड या बेस डालेंगे तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या करेंगे, वहां पर एसिड और बेस अपनी स्मेल को चेंज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल बेटा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के एग्जांपल है वेनिला,
सेकेंड एग्जाम्पल है ओनियन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्याज जो होता है आपका, अगर आप इसके ऊपर ओनियन के ऊपर एसिड और बेस डालेंगे तो उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। एंड थर्ड है क्लोव, क्लोव जिसको बोलते हैं लौंग को, तो ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, 3 ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, वेनिला, ओनियन एंड क्लोव। आई होप ये आपको समझ आएगी। इसमें स्मेल नहीं पूछी जाती है क्योंकि जस्ट ये पूछा जाता है कि व्हाट आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर एंड हाउ कैन व्हाट आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर एंड गिव देयर एग्जांपल्स। तो 3 एग्जांपल आपने याद रखने, यही आपके एनसीईआरटी बुक में दिए, क्लोव, लौंग जिसको बोलते हैं, अनियन एंड वेनिला। सो दैट आर द 3 एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ऑल्फैक्टरी का मीनिंग स्टूडेंट क्या होता है? ऑल्फैक्टरी जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है ऑर्डर चेंज, स्मेल चेंज। आई होप ये आपको समझ आए होंगे। सो स्टूडेंट, बिफोर आज का लेक्चर फिनिश करने से पहले आज मैंने जस्ट आपको इस चैप्टर में इंडिकेटर्स के बारे में बताया, ठीक है। तो सबसे पहले जो कॉमनली एसिड होते हैं जैसे टोमेटो, सिट्रस फ्रूट, इनका तो आप टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट से ही इनका कलर पता लग जाता है आपको कि ये खट्टे हैं, सॉर इन टेस्ट हैं, दैट इज कॉल्ड एसिड। और जो बेस होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं,